Dust, mangoes, and a town caught in transition is how many would identify Amroha. In the hinterlands of Uttar Pradesh, India's largest state, it is barely 4 kilometers off the national highway that links New Delhi with Lucknow. Now, when cars roar past it on the highway, they point in the direction of the town and say, Muhammad Shami comes from here. Shami started his journey from the dusty lanes of Amroha to the Indian Test cricket team and then got selected to the core group of 15 that would defend the World Cup in Australia. On February 15th, if Shami makes it to the Indian team for the dream clash against Pakistan, Amroha would be a ghost town. Thousands and thousands of eyes glued to TV sets, hearts in their mouth, a prayer on their lips as they watch Amroha's sun and star hopefully shine on the biggest stage of them all, the ODI World Cup. In the middle of Amroha, locked in a cluster of houses, is Tausif Ahmed's residence, Muhammad Shami's father. Tausif never played any sport, but he did dream of seeing his offspring play at a very high level. शौक था कि स्पोर्ट्स का मुझे पहले से, और एक सपना भी था कि पता नहीं ये लोग कैसे होंगे जो टीवी में देखते हैं, जिनको हम मैच खेलते हैं, क्या होगा, इनका स्टैंडर्ड क्या होगा, ये लोग कैसे होंगे। बहुत सारे ख्यालात दिमाग में आते थे, और बस आज अल्लाह का करम है कि हम खुद अपने बेटे को खुद को देख रहे हैं। There are no cricket stadia or grounds in Amroha, just flat land that does the work of a pitch. Sometimes it's just a dust bowl. Village lads run in and bowl fast. No coach, no nets and no academy. For Shami, it was a father who was also a coach. शुरू में बड़ा बेटा हसीब बहुत अच्छा ऑलराउंडर था, लेकिन उसकी शुरू में ही गुर्दे में स्टोन हुई, तकलीफ़ होने लगी तो वो रुक गया। उसी के साथ साथ खेल के समी को जब देखा, बहुत फास्ट बॉलिंग करते थे, समी बहुत बेहतरीन ऑलराउंडर थे, इतनी ज़बरदस्त बैटिंग करते थे कि समी जिस मैच में जाते थे, जिस टूर्नामेंट में जाते थे, वो छक्कों की बरसात होती थी। Cricketers are like film stars in this country. Even today, his villagers wait for him to come and visit the pitch when he first started bowling those outswingers. His success has given hope to the thousands who now watch him. हमें बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ से हमारे गांव से खिलाड़ी बने इस ग्राउंड से, और हमें लगता है कि और भी जितने खेल रहे हैं यहाँ पर बच्चे, इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो और भी खिलाड़ी उभर कर निकल कर रहे हैं। As a child living in Amroha, life was idyllic. Afternoons were spent riding the bicycle to the family guava orchard. नहीं, अब नहीं डांटेंगे। अब तो उन्होंने वो कर दिखाया जो उम्मीद भी ना थी। अब डांटने का कहाँ हिसाब है। अब तो दुआएं ही उनके साथ हैं। हम लोग सब गांव वाले मिलकर सभी दुआएं करते हैं, मस्जिदों में भी कुरान खाने भी कराते हैं, और सभी दुआओं के साथ उसे याद करते हैं। With the fever of the World Cup rising, prayers of the local population are with Shami. The local Moisin speaks of the days when Shami was a regular during prayer hours. ऐसी ही जो है तो छोटे छोटे बच्चों के साथ वो भी आते थे यहाँ नमाज़ पढ़ने के लिए, कुरान पढ़ने के लिए, और हज़ारों की भीड़ में ईद में, बकरीद में जैसे बच्चे आम आते थे उसी तरह से आते थे। लेकिन मेहनत का फल था, लोगों की दुआओं का समरा था कि आज एक छोटा बच्चा होकर के एक होनहार बन के आज जो है क्रिकेट में गया, और जो है तो पूरी दुनिया में आज वो सही है। Old friends still seek him out.
Nostalgia is sweet. Old haunts are memories. यार दुकान वो पहले से ही पुरानी हो चुकी है, काफ़ी टाइम हो चुका है उस दुकान को, तो दुकान अच्छी है और जो दुकान के ओनर हैं वो भी अच्छी हैं, मतलब प्यार से ही बोलते थे सबको, ये नहीं कि ऐटना वैटना या डांटना वाटना कुछ नहीं। तो हम लोग जब भी जाते थे दुकान पे तो उनसे हम पूछते नहीं थे, खुद ही निकाल के खा लेते थे जो चीज़ हमको चाहिए होती थी। In an already packed cricket calendar, Shami's visits to Amroha may be rare, but whenever he's there, his friends meet up and share notes. दोबारा यहाँ तक गांव में आते हैं तो दुकान पे जरूर आते हैं, इस तरीके से फ़ोन किया है, हम साथ में रहते हैं, बुलाओ कुछ खाते हैं यहाँ पे। तो जो गांव के जितने भी साथी हैं उनके हम हैं, और भी लड़के हैं जैसे शमशाद वगैरह, और भी कई लोग थे यहाँ, तो सब लोगों को बुला के एक जगह साथ में रह के जो इस तरीके से वो शेयर करते हैं साथ में। Little Scholars Academy has grown now. Shami studied here till the 5th standard, but the school is proud that the famous cricketer once sat on these very benches. Dr. Anuradha Bansal speaks about Shami and how he impressed his teachers. शमी बाकी बच्चों से अलग था, पढ़ाई बड़े अच्छे तरीके से करता था, पर उसकी स्टार्टिंग से ही खेल कूद में काफ़ी इंटरेस्ट लेता था, हर एक कोकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहता था, और शायद उसकी लगन और मेहनत शुरू से ही हर चीज़ के लिए पंक्चुअल होना उसको आज इतने बड़े उसके एम तक लेकर के गई। As the nation gets swept up in the World Cup fever, back in Amroha, his mentor and guru is sure of Shami's success. शमी ख़ास तौर से इंटरनेशनल मैच जिस वक्त से शमी ने खेले हैं विदेश में बहुत अच्छा उनका परफॉर्मेंस रहा है, और विदेशी पिचों पे शमी बहुत कामयाब रहे हैं, क्योंकि शमी के पास स्पीड भी है, स्विंग भी है, और उनको अगर ज़रा लय में वो आ जाते हैं तो फिर वो सामने वाला बैट्समैन कोई माने नहीं रखता, वो कोई भी क्यों ना हो। It will be a dream World Cup debut if Shami makes it to the team for the match against Pakistan. It is also his father's dream. देखिए, ये मेरा एक सपना था इंटरनेशनल में आने से पहले कि शमी का सिलेक्शन अगर इंडिया की टीम में हो, भारत के लिए वो खेलने, तो पहला मैच पाकिस्तान से हो। For little Shami, where he started his journey, there's a special message from the kids for their special alumni.